کہانی کسی کا آنا بہت ہی عجیب بات تھی۔ بہرحال ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ابھی آواز ختم ہو جائے گی، شاید کوئی جانور ہو، لیکن عدنان بھائی وہ آواز اب بڑھے چلی جا رہی تھی کہ تھوڑے تھوڑے گیپ سے وہ آواز دوبارہ سے آتی اور ہمارے دلوں پر اثر کرنے لگی۔ ہم ڈر گئے، ہم باتیں کر رہے تھے تو اب ہمارا ذکر اس والی بات پہ آ گیا جو وہاں پر اس مقامی لڑکے نے، جو ناران بازار میں، جس نے ہمیں کہا تھا کہ رات میں وہاں کیمپنگ مت کرنا، اور راستے میں جو شخص ہمیں ایک مقامی ملا تھا جس نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ وہاں جائیں، انجوائے کریں، لیکن رات وہاں پر مت رکیے گا، شام ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل آئیے گا۔ جب ایسی باتیں کوئی کرے تو مینس کے کچھ تھا، ہم نے وہاں اس ٹائم تو اگنور کر دیا، لیکن اب ہمیں احساس ہونے لگا کہ ان کی باتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی راز چھپا تھا۔ پر وہ راز کیسا تھا وہ بات ہم نے کھل کر نہیں پوچھی تھی، نہ ہمیں انٹرسٹ تھا، لیکن اب ہمیں فیل ہونے لگا کہ کچھ ہے جو ہمیں فالو کر رہا ہے۔ ہماری آنکھ جل رہی تھی، اور اگر دور سے بھی کوئی پہاڑ کے اوپر سے بھی کھڑا دیکھے تو اسے صاف دکھائی دے کہ وہاں کچھ ٹورسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آنکھ جلا رکھی۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ آگ کو بجھا دیا جائے، لائٹس آف کر دی جائیں اور اپنے اپنے کیمپس میں جا کر پناہ لے لی جائے، کیونکہ اب ہم بہت زیادہ ڈر چکے تھے، کیونکہ وہ آواز مسلسل ہمیں قریب آتی سنائی دے رہی تھی، لیکن تھی وہ پہاڑ کے اوپر سے ہی کہیں۔ یا میں بتاتا چلوں، جس جگہ ہم تھے وہ پیالہ نما جگہ تھی، یعنی کہ چاروں طرف پہاڑ تھے، ایک طرف جھیل تھی اور ہم اس کے کنارے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت خوبصورت جگہ تھی، لیکن اب وہ بہت پراسرار لگنے لگی کیونکہ رات ہو چکی تھی۔ رات کا منظر، ایسی جگہوں پر آپ اگر گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جگہ رات میں کتنی پراسرار اور خوفناک ہو جاتی، حالانکہ وہی دن میں بہت خوبصورت لگتی۔ ایسا ہی تھا، بس آسمان پہ ہلکے ہلکے تارے اور وہ آواز جو ہمیں فالو کر رہی تھی۔ اب سب کی بولتی بند تھی اور ہم آبزرو کر رہے تھے کہ آواز ابھی ختم ہو، لیکن وہ آواز مسلسل جیسے کوئی تھا جو ہمیں تنگ کر رہا تھا، وہ ہمیں ڈرانا چاہ رہا تھا، وہ ہم پہ خوف طاری کرنا چاہ رہا تھا۔ باقاعدہ ہمیں اس آواز سے فیل ہو رہا تھا۔ اب عدنان بھائی بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور اس آواز کا ویٹ کرنے لگے کہ کب یہ آواز بند ہو اور ہمیں کچھ سکون ملے۔ ہم وہاں سے بھاگ تو سکتے نہیں تھے کیونکہ رات میں وہاں سے نکلنا، وہ دن میں بہت خوفناک ٹریک تھا تو رات میں تو وہاں سے نکلا جانے والا نہیں تھا، تو ہمارے پاس اور کوئی چانس نہیں تھا سوائے وہاں پر رات گزارنے کے۔ خیر ہم نے کیمپ بند کیا، اس کی زپس بند کر لی، اپنے آپ کو بستر میں ڈالا، اپنی لائٹیں سب جو بھی چھوٹی موٹی لائٹس بھی آن تھی وہ بھی بند کر دی، ایون فون تک کو بھی آن نہیں کیا کہ اس کی بھی اسکرین آن ہو تو دور سے ہم واضح ہو جائیں۔ ایسا نہیں، اب ہوتا ایسا ہے کہ ہم اس آواز پہ کوئی ری ایکشن نہیں دے رہے تھے، تو اب وہ آواز ایک گھرانے کی آواز میں بدل گئی، جیسے کوئی دور کھڑا ایک بہت بھاری آواز میں گھرا رہا ہے۔ اور عدنان بھائی میں کیا بتاؤں، ابھی بھی میں آپ کو یہ سٹوری بھیج رہا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آواز ایسی تھی، اپنے آپ کو ان پہاڑوں میں امیجن کریں اور ان سناٹے میں سوئی کی بھی آواز نہ ہو، اور اس سناٹے میں کوئی دور سے ایک غرانے کی آواز آپ کو سنائی دے۔ او میرے خدا، اتنا خوف تھا کہ ہمارا دل پھٹ جائے گا اور ہمیں یہاں کچھ ہو جائے گا۔ آج یہ بات سچ ہونے والی ہے کہ جیسے کوئی اور غیر مرئی مخلوق ہمیں دکھنے والی ہے، شاید آج کوئی سپر نیچرل چیز کا انکاؤنٹر ہم سے ہونے والا ہے۔ اچھا ایسا ہے نا کہ ہم سٹوری سنتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ریالٹی میں کبھی اس چیز کا احساس بھی ہو جائے، ہمیں دکھائی نہ دے، ہمیں سنائی بھی نہ دے، بس ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ ہمارے راستے میں یا ہم جہاں پر موجود ہیں ہمارے آس پاس یہ موجود ہے، لیکن دکھائی نہیں دے رہی، لیکن اپنا آپ ظاہر ہلکا سا بھی کر دے، تو عدنان بھائی وہ خوف کا کیا لیول ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور شاید جن لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں وہی اس چیز کو صحیح سے امیجن کر سکیں، اس کو فیل کر سکتے ہیں۔
यार हम लोग दुबके रहे, मरते क्या ना करते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब जैसे कोई चीज खुर्राते हुए कोई उस पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रही है। वो एक स्लाइड नुमा पहाड़ था और बहुत बड़े बड़े कदम जैसे उन पहाड़ों पे कोई रखता हुआ उस नीचे ग्राउंड की तरफ आ रहा है। हालांकि हम बहुत स्टीफ हाइट पे थे, उससे भी ऊंचे पहाड़ थे, लेकिन फिर भी उस जगह पर जैसे कोई नीचे उतर रहा है, उसके बड़े बड़े कदम, इतना खौफनाक एहसास था, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। मेरे एक दो दोस्त तो रोने भी लग गए। सच बताऊं, खौफ का वो आलम था कि हम रो भी पड़े। मैं खुद भी, मेरी बहुत बुरी हालत थी। कैंप में बैठे बस अल्लाह को याद करते रहे, अपने गुनाहों की माफी मांगते कि या अल्लाह हम कहाँ फंस गए और ये आवाजें कैसी। काफी देर तक हमें महसूस होता रहा कि कोई बहुत दूर से चलता हुआ हमारे कैंप की तरफ आ रहा। अजान भाई यकीन माने, मैं क्या बताऊं, वो जो भी चीज थी, वो जो भी मखलूक थी, वो हमारे कैंप के पास थी, अब बहुत करीब आ चुकी थी। हम लोग सांस भी इस तरह ले रहे थे कि हम लोग सांस लेंगे, उसको उस चीज का भी आइडिया, हम लोग समझ लें सांस ना लेने के बराबर हम सांस ले रहे थे। और वो मुसलसल हमारे कैंप्स के चारों तरफ घूम रही थी। अब हमारी गाड़ी के अंदर सिक्योरिटी अलार्म लगा हुआ था। अगर गाड़ी को कोई हल्का सा भी टच करता है या उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो गाड़ी अलार्म देती थी। हालांकि उसका रिमोट मेरे पास था। हम इतने डरे हुए थे कि मेरे दिमाग में नहीं रहा उस गाड़ी का अलार्म ऑफ करना। ऐसा होता है कि वो जो भी मखलूक थी वो गाड़ी से जाकर टकराई है या उसने जाकर खोलने की कोशिश की है तो गाड़ी का अलार्म बज गया। अदान भाई जैसे अलार्म बजा तो इसके चारों इंडिकेटर जलते हैं, और ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं, इसके चारों इंडिकेटर जब एक अंधेरे में जब जलेंगे और साथ में अलार्म बजेगा तो सोचें ऐसी जगह जहां पर हल्की सी भी आवाज कितनी साफ आवाज से सुनाई दे, उस जगह पर ये आवाज कितनी गूंजेगी। मैं क्या बताऊं, उन पहाड़ों में हमारी गाड़ी की जो साउंड थी वो इस तरह गूंज रही थी कि हम जितना उस नॉइस को कम करना चाह रहे थे, हम चाहते थे बस ये किसी तरह बंद हो जाए, लेकिन वो उतना ही उस एरिया में गूंज रही थी। लेकिन शायद अल्लाह के हर काम में कुछ बेहतरी होती। वो जो भी मखलूक थी वो पैनिक हुई। डर तो हम भी गए थे, लेकिन वो जो भी मखलूक थी वो पैनिक हो गई और हमें बाकायदा फील हुआ जैसे उस गाड़ी से दूर भागने लगी। और भागते भागते वो खुर्राने की आवाज, उफ, मैं आज तक नहीं भूलता। मैं आपको बता भी नहीं सकता वो कैसी आवाज थी। बहरहाल वो बहुत अजीब सी आवाज थी और ऐसे लग रहा था कि वो बहुत कोई बड़ी ह्यूज हाइट का बंदा था या जो भी मखलूक थी, क्योंकि वो एक कदम लेता था और दूसरा कदम काफी दूर जाके गिरता था। उसके कदमों की आवाज से हमने अंदाजा लगाया कि ये बहुत बड़े कदम ले रहा। बारादान भाई हमने हिम्मत की, जब हमने ये आवाज दूर होती सुनी तो हमने जिप खोली कैंप की और बाहर उस तरफ देखा तो देखा वो जो भी चीज थी वो बहुत हाइट पे थी और वो दूर उधर जाती हुई हमें सफेद बर्फ के पहाड़ पे हमें दिखाई दी, जैसे कोई बहुत लंबी चीज थी। अंधेरे में हमें इतना वाज़ेह नहीं हुआ, लेकिन जो हल्की सी रोशनी जिससे बस हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिससे अंदाजा हो गया कि कोई बहुत ही अजीब चीज थी। वो इंसान तो था नहीं बिल्कुल भी। तो खैर अदनान भाई हमने रात कैसे गुजारी हम जानते हैं। पूरी रात हमने आयतें कलमे पढ़ते गुजारी। उसके बाद वापसी के लिए निकल पड़े। सुबह होते ही हमने कुछ नहीं खाया ना कुछ वहां बनाया, हमने बस कैंप क्लोज किए और हम वापसी के लिए निकल पड़े। सुबह उठकर जब हमने उस जगह पे देखा तो दूर बर्फ पर हमें बहुत बड़े पांव के निशान दिखाई दिए। मेरे एक दोस्त ने कहा पिक्चर ले लो, लेकिन हम बहुत डर चुके थे। हमने मना किया, नहीं यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह नहीं लेनी। खैर हम लोग गाड़ी निकाली और अल्लाह का नाम लेते लेते वापस नारायण होटल में आ गए। उस लड़के से मिले और उसे सारी बात बताई। उसने कहा मुझे मालूम था वहां पर ऐसी चीजों के असरात हैं, इसलिए मैं आप लोगों को मना कर रहा था, मैं खुले अल्फाजों में नहीं बोल सकता था। तो बहरहाल शुक्र करे अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया। बस कोई भी बहाना बना, लेकिन वो मखलूक आपसे दूर भाग गई। बहरहाल अदनान भाई हम 2 दिन और वहां रुके और हम कहीं आगे पीछे नहीं गए। इसके बाद हमारे में थोड़ी हिम्मत हुई और हम लोगों ने आके बाबूसर टॉप घूमे और फिर बस फाइनली हम वापस घर आ गए। तो ये मेरी एक स्टोरी है जो मैंने सोचा आपसे लाजमी शेयर करूंगा। आप यकीन करें मैंने वहां पर नारायण होटल में भी आपकी स्टोरी सुनी है,
जो मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद है आप मेरी स्टोरी अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी स्टोरी सुनने के लिए। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो आप स्टोरी सुने तो कमेंट में लाजमी हाजिरी लगाइएगा। तो काफ़ी लोग जो अपनी स्टोरीज मुझसे शेयर करते हैं, तो यार कमेंट में आके लाजमी लिखा करें कि जी ये आपकी स्टोरी थी और मैंने शेयर कर दिया। चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे कुछ ही दिन हुए हैं आपकी वीडियोस देखते हुए। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी भी एक खौफनाक कहानी शेयर करूं। मैं एक दर्जी हूं, दुकान छोटी थी जो कि किराए पर थी। वो दुकान मेरे सगे चाचू की थी। तो तब कुछ ऐसा होता है कि मैं 8 साल का था जब मैंने दुकान पर काम करना शुरू किया। मैं घर की मुश्किलात की वजह से उस काम के अंदर चला गया, नहीं तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं 2-3 साल के बाद इस काम के लिए ट्रेन हुआ था। एक दिन मुझे मेरे चाचू ने काम से बाहर भेजा। जिस गली में हमारी दुकान थी उस अगली गली में ही वो दुकान थी जिस पर इन्होंने मुझे भेजा था। वो गली कुछ और तरह से थी कि शुरू से तो वो गली खुली थी और वहां पर काफी लोग होते थे, लेकिन जैसे जैसे हम गली के अंदर जाते हैं तो वो गली तंग हो जाती थी और वहां पर लोग भी कम होते थे। उस टाइम मेरी उम्र 12 या 13 साल होगी। मेरे चाचू ने मुझे एक सलवार दी थी जिस पर कोई काम करवाना था। तो मैंने उस गली में जाकर उस दुकान वाले से कहता हूँ कि काम करते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, थोड़ा देर लगेगी, आप यहाँ पर बैठ जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, आप ये काम कर दो। तो उसने कहा कि ठीक है और फिर मैं चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं वापस आया, उसे सलवार ली और वापस आने लगा। अदनान भाई, हम जैसे ही उस गली से निकलते थे तो वहां पर एक दरख्त था। मैं जैसे ही वहां से निकला तो मैंने क्या देखा कि उस दरख्त के नीचे पता नहीं अल्लाह की कौन सी मखलूक थी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो 8-9 फीट लंबी थी। और अल्लाह जानता है कि उसको देखकर मैं इतना खौफजदा हो गया कि मुझसे हिला तक नहीं गया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उस टाइम मुझे आधी आयतुल कुर्सी आती थी और आधी नहीं आती थी। तो मुझे जितनी आयतुल कुर्सी आती थी, कलमे आते थे, वो सब कुछ मैं जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। और पता नहीं क्या हुआ कि वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक पीछे से कोई लड़की आती है। मैं नहीं जानता कि वो कौन थी। तो मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से भगाने लगी। तो मैं बेसाख्ता उसके साथ भागता जा रहा हूँ। वहां से हमारी दुकान तक का सफर 5 से 7 मिनट का होगा। तो जितना भी सफर था हम भाग कर करते हैं।